જીગર દેવાણી આપનું સ્વાગત કરું છું આ તો ખાલી વાત છે કાર્યક્રમમાં। વિશ્વભરમાં કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોને દહેશત ફેલાવી છે, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ ઓમિક્રોન વેરિયન્ટનો પ્રથમ કેસ જામનગરમાં નોંધાયો હતો અને જેના સંપર્કમાં આવેલી તેની પત્ની અને શાળા એમ 2 વ્યક્તિમાં પણ ઓમિક્રોન હોવાનું સામે આવ્યું છે। એટલે કે ગુજરાતની અંદર ઓમિક્રોનના કુલ 3 કેસ થઈ ગયા છે અને આ 3 કેસ જામનગરમાં નોંધાયા છે। આપણે જણાવી દઈએ કે આ 3 કેસથી આપણે વાત કર્યા છે જે જામનગરમાં નોંધાયા છે। ઓમિક્રોન હોવાનું જે લેબોરેટરી તપાસમાં સામે આવ્યું, જામનગરમાં જે વ્યક્તિ ઓમિક્રોન પોઝિટિવ આવી હતી તેના સંપર્કમાં આવેલી 2 વ્યક્તિનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો, જેથી ઓમિક્રોનને લઈને તેમના સેમ્પલ મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેમાં બંને વ્યક્તિમાં પણ ઓમિક્રોન હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે। ખાસ કરીને આપણે જણાવી દઈએ કે આ વાયરસ છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારતભરમાં એન્ટ્રી લઈ ચૂક્યો છે અને ધીરે ધીરે ગુજરાતમાં પણ એન્ટ્રી લઈ ચૂક્યો છે। ત્યારે હવે આ જામનગરમાં બીજો આ કેસ નોંધાયા છે, એટલે કુલ 3 કેસ નોંધાયા। ઓમિક્રોનનો પ્રથમ કેસ ગુજરાતમાં જામનગરમાં જ નોંધાયો હતો અને આ તમામની વચ્ચે દહેશત ધીરે ધીરે વધતી જતી જોવા મળી રહી છે। આપણે જણાવી દઈએ કે ઝિમ્બાબ્વેથી 28 નવેમ્બરે ગુજરાત આવેલા જામનગરના 72 વર્ષીય વૃદ્ધનો 2 ડિસેમ્બરના રોજ કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો। ઓમિક્રોનના શંકાસ્પદ લક્ષણ જોવા મળતા સેમ્પલ પુણે લેબમાં પણ મોકલવામાં આવ્યું હતું। સાથે જ આ વૃદ્ધનો ઓમિક્રોન રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા શહેરનું આરોગ્ય તંત્ર હરકતમાં આવી ગયું છે। ગુજરાતમાં ઓમિક્રોન વેરિયન્ટનો આ પ્રથમ કેસ નોંધાયો હતો। મુખ્ય સચિવે જામનગરના કલેક્ટર અને આરોગ્ય અધિકારીઓ સાથે રિવ્યૂ મિટિંગ બોલાવી હતી અને મુખ્યમંત્રીએ પણ તાત્કાલિક રિવ્યૂ બેઠક બોલાવી હતી। ત્યારે આપનું શું માનવું છે કે હવે કેવા પ્રકારનો સમય આવી ગયો છે? જણાવો આ ફોન નંબર ઉપર। ઓમિક્રોનનો આ પ્રથમ કેસ જામનગરમાં નોંધાયા બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નિવાસસ્થાને આરોગ્ય મંત્રી સાથે ત્વરિત બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી અને આ બેઠકમાં ઓમિક્રોન વેરિયન્ટના ખતરાને પહોંચી વળવા અંગે ચર્ચા પણ કરવામાં આવી હતી। રાજ્યના તમામ જિલ્લા કલેક્ટરને વિદેશથી આવેલા પ્રવાસીઓનું સઘન ટેસ્ટિંગ પણ કરવામાં આવે એવી સૂચના પણ આપવામાં આવી છે। સાથે જ બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો આરોગ્ય સચિવ મનોજ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે જામનગરની ડેન્ટલ કોલેજમાં આઇસોલેશનમાં રાખવામાં આવ્યા છે। 4 વ્યક્તિ કોરોના પોઝિટિવ આવી, એમાંથી એકને ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ ડિટેક્ટ થયો છે। ચોક્કસથી જે રીતે આ કેસીસ હવે વધી રહ્યા છે, એક ચિંતાનો વિષય છે। કોરોનાની બીજી લહેર વખતે રિલાયન્સે કોવિડ હોસ્પિટલ શરૂ કરી હતી અને ગુજરાતમાં કોરોનાની બીજી લહેર હતી એ સમયે રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા જામનગરની ડેન્ટલ કોલેજમાં કોવિડ હોસ્પિટલ શરૂ કરવામાં આવી હતી। હાલ આ હોસ્પિટલમાં ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ ધરાવતા દર્દીઓની સારવાર હાલ આપવામાં આવી રહી છે। મિત્રો, આપનું શું માનવું છે કે હવે કેવી રીતે આનાથી બચી શકાય? કારણ કે આની શરૂઆત તો થઈ ગઈ છે, શરૂઆત ગંભીર છે, માત્ર શરૂઆત ગંભીર નથી। હવે એક બાજુથી આપણે તમામ પહેલી વેવ, બીજી વેવ અને એમાં ઘણું બધું શીખ્યા, ઘણા બધા લોકોને ગુમાવ્યા અને એમાં ઘણું બધું શીખ્યા પણ ખરા। પણ શું આ વખતે પણ ખાલી આ રીતે ચર્ચા થશે કે સાચા અર્થમાં વાસ્તવમાં તંત્રએ, સરકારે, પ્રશાસને કોઈ તૈયારી કરી દીધી છે? આ તો ખાલી વાત છે, પણ જાણવું પણ પડશે ને। મારે તમારી પાસેથી જાણવું છે કે તમને શું આશા છે, તમને શું લાગે છે? ભગવાન ના કરે કદાચ આ ત્રીજી વેવ આવી જાય અથવા આવી ગઈ તો શું તેના માટેની તૈયારીઓ પૂરતી લાગી રહી છે? કારણ કે એક બાજુથી નવરાત્રિની છૂટછાટ આપવામાં આવી, બીજી બાજુ દિવાળીમાં કોઈ રોકટોક નથી, એક બાજુથી કર્ફ્યુમાં પણ હવે કોઈ એવા મોટા સ્ટ્રિક્ટનેસ આપણે નથી જોઈ રહ્યા અને હવે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની પણ આપણે વાત કરી રહ્યા છે। ત્યારે શું લાગી રહ્યું છે કે શું આપણે સાચી દિશામાં જઈ રહ્યા છે? શું હજુ પણ કંટ્રોલ કરવાની જરૂર છે? ન્યૂ કોવિડ નોર્મલથી જીવવાનું આપણે શરૂ કરી દીધું, પરંતુ તકેદારી રાખવાનું શું આપણે ભૂલી રહ્યા છે? આપના ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જે નંબર આવી રહ્યો છે +1161362071 અને બીજો નંબર +1161362068 પર આપ પોતાની પ્રતિક્રિયા, આપ પોતાનું મંતવ્ય, આપ પોતાના અભિવ્યક્તિ વ્યક્ત કરી શકો છો। મિત્રો, આપણી પાસેથી જાણવું છે, મારે સમજવું છે કે હવે ઓમિક્રોનના 3 કેસ જ્યારે ગુજરાતમાં છે અને બીજી બાજુ ગઈકાલની જો વાત કરવામાં આવે તો ગઈકાલે 70 કેસ, જે 38, 40, 42, 45થી વધીને હવે ગઈકાલે 70 કેસ, એટલે પરમ દિવસે પણ લગભગ 68 આસપાસ હતા અને ગઈકાલે 70 કેસ ગુજરાતમાં આવ્યા છે। એટલે બની શકે કે એમાંથી ઓમિક્રોનના દર્દીઓની સંખ્યા પણ વધારે હોય। સવાલ ખાલી ઓમિક્રોન પૂરતો નથી, સવાલ કોરોના પોઝિટિવ હોવાનો છે। આ આંકડાઓ હવે વધી રહ્યા છે। આપણને સૌને ખબર છે કે એક કેસ રોજના 1 લાખ કરતાં મૂકી દેશે।
એવા સમયમાં આ પ્રકારના કેસીસ, એવા સમયે આ પ્રકારના આંકડાઓ, વધતા જતા આંકડાઓ ચોક્કસથી સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે ક્યાંક કદાચ ત્રીજી લહેરના જે ભણકારા વાગી રહ્યા હતા તેની એન્ટ્રી ભારતભરમાં અને ગુજરાતમાં થઈ ચૂકી છે. હું આપણે ડરાવી નથી રહ્યો, પરંતુ હું વોર્ન કરી રહ્યો છું. જો સેનિટાઈઝ નહીં કર્યું, જો માસ્ક નહીં પહેર્યું, જો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું મેન્ટેન નહીં રાખ્યું, તો પછી એક વાત સ્પષ્ટપણે સાબિત થશે કે ત્રીજી લહેરને આવતા કોઈ જ કરતાં કોઈ આપણને રોકી નહીં શકે. હવે આ તમામની વચ્ચે આપણે જાણીએ છીએ, આપણે સમજીએ છીએ અને આપણે માનીએ પણ છે કે આખરે આ કેસીસ જે વધી રહ્યા છે એની પાછળ ક્યાંક તકેદારી રાખવાની ફરજ તો આપણી જ છે. દર વખતે સરકાર પર દોડી દેવું પણ યોગ્ય નથી. તો આ તો ખાલી વાત છે, કારણ કે આપણે આ જાણવું સમજવું એટલા માટે જરૂરી છે કારણ કે જામનગરમાં 2 કેસ અને ત્યારબાદ બીજો એક નવો કેસ, 3 કેસ આવ્યા છે. હું આ એટલા માટે કહું છું કારણ કે જ્યારે આપણે પેનિક સિચ્યુએશનમાં આવી જઈએ છીએ, જ્યારે આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં આવી જઈએ છીએ કે જ્યારે આપણને ખબર છે કે ચારે બાજુ હોસ્પિટલ ખબાખબ ભરેલી છે, ચારે બાજુ કોઈને કોઈ રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે એક બાદ એક ડેડ બોડી વધતા જઈ રહ્યા છે, અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે લોકોની લાઈનો લાગેલી છે, ગમે ત્યારે ગમે તેનો જીવ જતો રહે છે, લોકડાઉનના ભડકારા વાગતા હોય છે અને આ બાજુ તમામ લોકો એક ડરના માહોલમાં ઘરમાં પૂરાઈ જતા હોય છે. આ વસ્તુ આપણે 2 વાર ભોગવી ચૂક્યા છે. હવે ત્રીજી વારનું પુનરાવર્તન ન થાય એ માત્ર ને માત્ર સરકાર નહીં, પરંતુ સામાજિક જવાબદારીના ભાગરૂપે સામાજિક રીતે જાગૃતિ કેળવીને તેનો આપણે પોતે એક ભાગ બની જવું પડશે. કારણ કે માસ્ક સરકાર પહેરાવા નહીં આવે, આપણે હાથ પગ સેનિટાઈઝ કરીશું એ સરકાર નહીં કરે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું મેન્ટેન એ સરકાર નહીં કરે. આપણે જ સમજવાનું છે કે ભીડભાડવાળી જગ્યાએ નથી જવાનું, માસ્ક પહેરી રાખવાના છે. હું તો કહું ડબલ માસ્ક પહેરો. ડબલ માસ્ક પણ હવે આવશ્યક થઈ ગયા છે કારણ કે કોઈ પણ રીતે થોડું ઘણું પણ રિસ્ક લીધું તો પોતાના સગાવાલા, મિત્રો, કુટુંબીજનોથી લઈને સમાજના તમામ લોકોને આપણે પોતે જ ક્યાંક ડેમેજ કરી દઈશું જાણતા અજાણતા. અને હવે આનું પુનરાવર્તન ન થવું જોઈએ એના માટેની આ કોશિશ સતત આપને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે આપ પોતે પણ ધ્યાન રાખો. પરંતુ આ માહોલની અંદર આપનો વિચાર શું કહે છે? શું ત્રીજી વેવ આવી ગઈ છે? આપનો વિચાર શું કહે છે કે શું આ ત્રીજી વેવના ભણકારા શરૂ વાગતા હતા એની આ શરૂઆત થઈ ચૂકી છે? આપને શું લાગે છે આ 70 કેસ, 70નો આંકડો આપ તેને કેવી રીતે જુઓ છો? એક સમય હતો જ્યારે 1000-1200 થતા હતા ત્યારે આપણને 70 સારા લાગતા હતા, પણ હવે 0 પર આવવા આવ્યું ને હવે પાછું 70 જઈ રહ્યું છે. એનો મતલબ કે આપણે બીજી દિશામાં જઈ રહ્યા છે. આપણે ડિક્રીઝ કરતાં કરતાં 0 પર આવવાનું હતું, હવે એમાંથી પાછા ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યા છે. એટલે 70 ભલે વધારે હોય કે ઓછા હોય એ મતલબ નથી કરતું. એક કેસ પણ, જી હા હું ફરી એકવાર કહીશ, એક માત્ર કેસ પણ કોઈ પણ રીતે આપણને ડેમેજ કરી શકે છે અને માત્ર ડેમેજ નહીં, ઘણા બધા લોકોના જીવ જઈ શકે છે. આ એવો રોગ છે, આપણે ટાઇફોઇડ, કમળો કે કોઈ બીજી બીમારી, ડેન્ગ્યુ કે એમાં આટલી ચર્ચા નહોતા કરતા કારણ કે શ્વાસોશ્વાસથી તરત નહોતો ફેલાતું, આટલું એનું વાઇબ્રેશન નહોતું. પરંતુ કોરોનામાં આપણે જોઈ ચૂક્યા છે કે દરેક વ્યક્તિ નિમિત્ત બની જાય છે કે બીજા વ્યક્તિને બીમાર કરી શકતો હોય છે. એવા સમયે આપણે સમજી જવું પડશે કે હવે ક્યાંક જાગૃતિ દાખવવી પડશે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં પણ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે કે અમદાવાદની અંદર લગભગ 2 દિવસ પહેલાંના સમાચાર હું આપને બતાવું કે એક રિસર્ચ આવ્યું હતું અને આપણે જોયું હતું કે બોપલમાં જે મોટાભાગના જે લગ્ન પ્રસંગો થઈ રહ્યા છે એમાં ત્યાં મોટાભાગના લોકો કોરોના પોઝિટિવ ઝડપાયા હતા. હવે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે લગ્નની સિઝન ચાલી રહી છે. હું બિલકુલ એ એક અંગત મામલો છે એટલે એમાં વધારે ટિપ્પણી નહીં કરું એ જ વધારે હિતાવત છે. પણ કેટલા લોકોને ઇન્વાઇટ કરવા, કેવી રીતે ધામધૂમપૂર્વકને કંટ્રોલ કરવી, કેટલા લોકોના ટોળા ભેગા થયા, ખુશીનો પ્રસંગ હોય, સ્વાભાવિક છે આટલા વર્ષે લોકો મળતા હોય, એક એક્સાઇટમેન્ટ છે. પણ
સાથે સાથે આ સમય યોગ્ય નથી. આ સમય યોગ્ય નથી લોકોએ ભેગા થવાનો. આ સમય યોગ્ય નથી કે સેલિબ્રેટ કરો તમે બધા ભેગા થઈને, ટોળે ટોળામાં લોકો બહાર નીકળો અથવા કોઈ પણ પાર્ટીને એન્જોય કરો. આ એના માટેનો સમય નથી. હજુ પણ એટલા માટે સમજાવું છું કારણ કે ડિસેમ્બર મહિનો ચાલે છે અને પશ્ચિમીકરણનું અનુકરણ આપણે જે રીતે ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે, 31 ડિસેમ્બરે આનું પુનરાવર્તન થવાનું છે, ચાહે હું ગમે તેમ બોલું. પણ શું એને આપણે કંટ્રોલ નહીં કરી શકીએ? શું એ આપણી જવાબદારીમાં નથી આવતું કે એને આપણે ક્યાંક કોઈક અંશે કંટ્રોલ કરીએ? કારણ કે જ્યારે તહેવાર આવે છે, જ્યારે કોઈ મોટી રજાઓ આવે છે અથવા જ્યારે બહુ મોટા ગ્રુપ ભેગા થતા હોય છે, ફરવા જવાના સ્થળની વાત કરતા હોઈએ છીએ, આ તમામ જગ્યાએ જે સોશિયલ ગેધરિંગ થાય છે એના પર કોઈનો કંટ્રોલ નથી હોતો કારણ કે એમાં પોતાની ચોઈસ હોય છે. તો એ ચોઈસને આપણે સમજી વિચારીને ક્યાંક વિચારીને આપણે આગળ લઈ જવાની છે કે શું આપણે ખોટા રસ્તે તો નથી જઈ રહ્યા. આ તમામની વચ્ચે આપનો પોતાનો અભિપ્રાય શું છે મારે જાણવો છે. મિત્રો, આપ ચોક્કસથી મારી સાથે ચર્ચા કરી શકો છો. આ તો ખાલી વાત છે કારણ કે આ માત્ર તમારી વાત છે. અહીંયા રોજ કહું છું, ફરી એકવાર કહીશ, કોઈ રાજકીય વિશ્લેષક નહીં, કોઈ બીજા પત્રકાર નહીં, કોઈ જ વિદ્વાન નહીં, કોઈ સેલિબ્રિટી નહીં, કોઈ પોલિટિકલ નેતા નહીં, માત્ર અને માત્ર તમે એટલે કે જનતા સીધી જ મારી જોડે વાત કરશે. એટલે કે આ શો તમારો છે, આ પ્લેટફોર્મ તમારું છે. ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત એટલે તમારી ચેનલ. આ તો ખાલી વાત છે, માત્ર તમારી વાત. ઉઠાવો ફોન અને લગાવો નંબર +11 61 36 2071 અને બીજો નંબર +11 61 36 2068 પર. જણાવો આપનો અભિપ્રાય, જણાવો આપની વ્યક્તિત્વ, આપણું વિચાર શું કહે છે. અને આસપાસ આપ જોઈ પણ રહ્યા હશો, ઘણા બધા લોકો ઘણી બધી રીતે ઘણું બધું કરી રહ્યા હશે, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી રોજિંદા જીવનની અંદર ક્યાંક ભૂલી જતા હોઈએ છીએ કે આપણે શું અને કેવા પ્રકારની તકેદારી રાખવીતા હોય છે. હાલ મહેસાણાથી જોશાબેન જોડાઈ ચૂક્યા છે. જોશાબેન, સ્વાગત છે આપનું. જણાવશો ઓમિક્રોનની જે દહેશત ગુજરાતમાં જોવા મળી રહી છે, 3 કેસ આવી ગયા છે, કેવી રીતે આપ જોવો છો? ઘણા એવા લોકોને જોઈ રહ્યા છે કે હાલ આટલી બધી કોરોનાની દહેશત ફેલાય છે, પરંતુ છતાં પણ એ લોકો કોઈ પણ પ્રકારની સાવચેતી નથી રાખી રહ્યા આ બાબતે. તો તમને શું લાગે છે કે ક્યાં ચૂક રહી ગઈ છે? જી, હું આપને એ પૂછીશ કે પહેલી વેવ જે રીતે કોરોનાની આવી, બીજી વેવ આવી અને હાલ ત્રીજી વેવના કેસો પણ વધી રહ્યા છે, તો વેવ વિશે શું આશંકા છે? બિલકુલ આશંકા છે જ, કારણ કે કેસીસ વધી રહ્યા છે. એટલે મારે તમને પૂછવું છે કે આજે આંકડાઓ વધી રહ્યા છે, ગઈકાલે 70 કેસ આવ્યા છે. શું આપણે લાગે છે કે સમય આવી ગયો છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક પહેલા અને બીજા વેવમાં જે તકેદારી રાખી હતી એને સ્ટ્રિક્ટલી પાલન કરવું જોઈએ? આપણે લાગે છે કે આની એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે ત્રીજી વેવની? જી, પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કેમ કે આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ કે કેવી રીતે પહેલી વેવ અને બીજી વેવમાં લોકો હેરાન થયા હતા. હોસ્પિટલની બહાર લાંબી લાઈનો હતી, ઓક્સિજનની ભરપૂર પ્રમાણમાં કમી વર્તાઈ રહી હતી. તો એ બધું આપણે જોઈ ચૂક્યા છે. તો હવે આપણે સમજવું જોઈએ કે ત્રીજી વેવમાં આપણે કેટલી તકેદારી રાખવી જોઈએ. તો હાલ હું એ પણ કહીશ કે ઘણા એવા લોકોને હાલ છે જે ઓમિક્રોનના નવા વેરિયન્ટને લઈને બેદરકારી પર દાખવી રહ્યા છે. તો એ અંગે આપ બિલકુલ બેદરકારી રાખી રહ્યા છે. જોશાબેન, આપણી વાત બિલકુલ સાચી છે, કારણ કે જે જાણવું સમજવું જરૂરી છે એ લોકો નથી સમજી રહ્યા અને ક્યાંક કહી શકાય કે વાર તહેવારે આ બધી પરિસ્થિતિઓને ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લેતા હોય છે કે હવે તો 2 વેક્સિનના ડોઝ લીધા છે, હવે તો 2 વેવ પણ પૂરી થઈ ગઈ છે, હવે તો પહેલા જેટલા કેસ પણ નથી આવતા, કોરોના તો ઘર બેઠા પણ સોલ્વ થઈ શકે છે. આ પ્રકારના વિચારો અથવા ઘણા લોકો હજી પણ માને છે ભાઈ આવું બધું કશું હોતું નથી તો મને નહીં થાય. ભાઈ આ પ્રકારના વિચારો જ કદાચ આ સમાજને ડેમેજ કરે છે, નથી લાગતું આપને? લાગી રહ્યું છે. અને લોકો જે રીતની બેદરકારી દાખવી રહ્યા છે, તો પરંતુ હવે આપણે સમજવું જોઈએ કે થોડાક આ બાબતે જાગૃત થઈએ અને ઓમિક્રોનને લઈને સરકારની કેવી રીતની તૈયારીઓ છે એ વિશે આપ અમને જણાવશો. હા બિલકુલ. જોશાબેન, પહેલા તો મને એ કહેશો કે તમે બંને વેક્સિનના ડોઝ લીધા? હા, લઈ લીધા. ઓકે. અચ્છા, આપની આસપાસ આપણા કુટુંબીજનો મિત્રોમાં કોઈ એવા છે કે જેમને વેક્સિન જ ના લીધી હોય અથવા એક જ ડોઝ લીધો હોય? આસપાસ ઘણા એવા લોકો છે જેમણે નથી લીધા. અચ્છા, એક પણ ડોઝ નથી લીધા? ના, એક લીધો હોય, એક નથી લીધો. ઠીક છે. ક્યારે ચર્ચા કરી તમે ખુલીને એમની સાથે કે ભાઈ કેમ નથી લીધો, શું કોઈ કારણ બહાર આવ્યું?
ના, એવી તો કોઈ ચર્ચા નથી થઈ. બિલકુલ, તો હું એ જ કહી રહ્યો છું કે બીજા બધા લોકોએ પણ હવે ધીરે ધીરે આગળ આવવું પડશે જ્યોત્સાબેન, અને આપણે સમજવું પડશે, તેમને સમજાવવા પડશે કે હવે કોઈ પણ પ્રકારની ચૂક ના રહી જાય. સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે, ત્યારે વેક્સિનના ડોઝ લેવા પણ એટલા જ જરૂરી છે, અને બહાર કામ વગર ન નીકળવું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવું, માસ્ક પહેરી રાખવું. તમે ઘણા બધા જોતા હશો હજુ પણ માસ્ક નહીં પહેરતા હોય. તો હવે મારો છેલ્લો સવાલ આપને એ રહેશે કે આપના મત મુજબ જનતાએ આ ઓમિક્રોન થી બચવા માટે કેટલી અને કેવી રીતની તકેદારી રાખવી જોઈએ? સિમ્પલ વાત છે, ખૂબ સારો સવાલ, પરંતુ સિમ્પલ જવાબ એ જ વસ્તુ છે પહેલી અને બીજી બેમાં આપણે ધ્યાન રાખ્યું હતું. એટલે કે સ્પષ્ટ વાત અહીંયા એ સામે આવી છે કે માસ્ક પહેરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું મેન્ટેન કરો, સેનિટાઈઝ કરો, કારણ વગર ઘરની બહાર ના જાઓ, ટોળાને પાર્ટી ના કરો, મોટું ગેધરિંગ ના કરો. આટલી તકેદારી અને વેક્સિન અચૂક લો, બંને વેક્સિનના ડોઝ અચૂક લો. આટલું જો કર્યું તો આપણે આપણી ફરજ નિભાવી છે એવું આપણે કહી શકીશું. ખરું કે નહીં? ખરું. તો આપના મત મુજબ જે રીતની તકેદારી આપણે પહેલી અને બીજી વેવમાં રાખી, એ જ રીતની તકેદારી અત્યારે રાખવાની છે. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. અમારી સાથે જોડવા માટે ધન્યવાદ. તો ચોક્કસથી કહી શકાય કે જે પ્રકારે આપણે જોઈ રહ્યા છે, સમજી રહ્યા છે, ત્યારે આ તમામની વચ્ચે લોકો પણ ધીરે ધીરે જાગૃત થઈ રહ્યા છે. મિત્રો, આ તો ખાલી વાત છે માં હું એક નાનકડો વિરામ લઈશ આ સબ્જેક્ટ ઉપર, પરંતુ પહેલાં આપણે જઈશું સીધા જ કે જ્યાં આજે સીડીએસ જનરલ રાવતની અંતિમ યાત્રા, જ્યાં કહી શકાય કે મોટી સંખ્યામાં લોકો આગળ આવ્યા છે, તેમના દર્શનાર્થે લોકો શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી રહ્યા છે, લોકો પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, અને શત નમન, તેમને દેશભરમાંથી તેમને લોકો નમન કરી રહ્યા છે. એમની અંતિમ યાત્રા આપણે જોઈશું, નિહાળીશું, દર્શન કરીશું, અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે આ પ્રકારની ઘટના જીવનમાં બીજી વાર ક્યારે કદી ન થાય. से सजाई हुई ये गाड़ी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए फूलों से ही ढका गया. अंदर कॉफिन के तिरंगे में लिपटा हुआ जनरल रावत का पार्थिव शरीर है, और अब ये काफिला आगे बढ़ते हुए उन लोगों को भी अंतिम दर्शन का मौका मिल पाएगा जो आम लोग हैं और घरों के बाहर सुबह 9 से 10 बजे से घंटों से खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं. पांडे सर, अपनी बात पूरी कर लें. आपको बताया कि लोग किस प्रकार से उमड़े हैं, जो हुजूम जो उभरा है भारतवासियों का, ये बहुत बड़ा संदेश देता है. और अगर मैं कहूँ कि जो भारतीय सेनाएं हैं विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में डटी रहती हैं, उसके पीछे ये भावना है लोगों की जो हमारे मनोबल को हिमालय से भी ऊंचा बनाए रखती है. निश्चित रूप से इस भावना को, इस जज्बे को पूरा सभी सेनाएं सल्यूट करती हैं. और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश का वासी हूँ जहाँ पर ऐसे लोग सम्मान देते हैं अपने राष्ट्रवीरों को. और जहाँ तक एक और मैं बताना चाहूँगा लोगों की जानकारी के लिए कि जब ये यात्रा होगी और प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको 17 तोपों की सलामी दी जाएगी. ये एक परंपरा जो है हमें ब्रिटिश काल से यह है, और किसी ज़माने में ब्रिटिश क्राउन को 101 तोपों की सलामी दी जाती है, और 101 तोपों के बाद ये 31 तोपों को हुई, और बाद में 21 तोपों को हुई. अब जो नियम बना है कि जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो दूसरे VVIPs हैं उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और सैन्य जो अध्यक्ष हैं उनके लिए ये 17 तोपों की सलामी दी जाती है. कि केवल मात्र जानकारी जो लोग उत्सुक होंगे जानने के लिए, कि क्योंकि अक्सर दर्शक सुनते हैं कि 21 तोपों की सलामी, 21 की सलामी, और आज ये जो है हम बात कर रहे हैं 17 की. तो पहले 101 रहा, फिर बाद में 31 हुआ, फिर 21 और फिर 17. लेकिन अब 17 और 21 दोनों का परंपरा है, और वो उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से, और ये प्रोटोकॉल कोई अनिश्चित नहीं है, ये निश्चित है, और ये हमारे पॉलिसीज का हिस्सा है. तो उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये सब कार्रवाई हो रही है. और जिस प्रकार से ये अंतिम यात्रा उनको निकल रही है और लोग उमड़े पड़े हैं, ये बताता है कि वो कितने जनप्रिय थे. और बहुत जो भावनाओं का जो उछाल है लोगों के बीच में, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है. और सवेरे हमने देखा कि लीडर और उनके पत्नी, बच्चों ने किस प्रकार से अपनी भावना व्यक्त की. और जो प्रधानमंत्री हैं बिगड़े लीडर की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अपना दर्द लोगों के जो लोग आए हैं, इतनी भीड़ जो इकट्ठा हुई है, लोगों के साथ जो है
फिर से उनको मनोबल मिलाया और उनको शक्ति मिल रही है। तो जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा होता है कि हम जो भी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो तहे दिल से निकल रही है, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है और सभी के लिए। ठीक कह रहे हैं आप, सब अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप रहिएगा सब हमारे साथ, चूंकि तस्वीरें अब अंतिम यात्रा की आगे बढ़ते हुए सामने आ रही हैं और जिस तरीके से जमावड़ा बाहर मौजूद था और अब ये जो होड़ लगी हुई थी आखिरी दर्शन करने के लिए, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, वो हमने देखी। ये देशभक्ति का जज्बा है, ये देश के हीरो को सलाम करने का तरीका है और ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये हिंदुस्तानियों के जज्बे की तस्वीर है जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जनरल रावत अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हैं और हर देशवासी अपने अपने तरीके से उन्हें ये आखिरी गुड बाय बोल रहा है। जो कुछ काम उनका रहा, जो कुछ सफ़र उनका अब तक रहा और जिस तरीके से काबिलियत सीडीएस जनरल बिपिन रावत में थी, उसको देखते हुए ही और उनकी जो सोचने समझने की क्षमता थी, जो रणनीतिक विचार उनके थे, उन्हें देखते हुए ही देश के पहले सीडीएस के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 43 साल कम नहीं होते, 42 से 43 साल सेना में रहते हुए देश के लिए सेवा करना, और उन्हीं सब बातों का नतीजा है कि आज देशवासी नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, चाहे वो टीवी स्क्रीन से जुड़े हुए हों या फिर अपने घर बैठे हों या फिर मोबाइल के ज़रिए इन तस्वीरों को देख रहे हों या फिर जनरल रावत के घर के बाहर ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं या फिर वो लोग हों हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। उत्तराखंड से ख़ासतौर पर कई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं क्योंकि उत्तराखंड से बिलोंग करते थे जनरल रावत। उत्तराखंड के लोग खासे इमोशनल हैं इस खबर के बाद। ऐसे में जैसे कि अभी डीके पांडे सर भी कह रहे थे, प्रोटोकॉल्स के तहत अब अंतिम यात्रा पर जनरल रावत और ये अंतिम यात्रा पर जो अंतिम सफ़र है वो कहाँ से होकर गुजरेगा, लगातार टीवी स्क्रीन के ज़रिए हम जानकारी आपको दे रहे हैं। लोअर बैंड पर अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक के बाद एक कौन सा वो पड़ाव है। सरदार पटेल मार्ग, धौला कुआं, दिल्ली कैंट, और फिर जो अंतिम पड़ाव है वो है बरार स्क्वायर शमशान का, जहां पर पहुंचना है। ऐश्वर्या जैन अब अंतिम सफ़र में शामिल हैं इस वक्त। ऐश्वर्या, क्या देख रहे हैं आप, क्या बताएंगे? लोगों की तमाम भीड़ और अंतिम दर्शन करने के लिए आप तमाम इन लोगों को देख सकते हैं जो यहाँ पर एक झलक और अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जनरल बिपिन रावत के पहुँचे हैं। पोस्टर्स, बैनर्स हाथ में है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अमर रहे। भारत के तिरंगा झंडा आपको चारों ओर यहाँ पर नज़र आएगा इस अंतिम सफ़र में। और जिस तरीके से आर्मी, नौसेना और वायुसेना के तमाम जो अफसर हैं वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। अब जो गन कैरेज है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ से दिल्ली कंटोनमेंट बरार स्क्वायर पर अंतिम यात्रा तक यहाँ पर तमाम लोग आपको भीड़ यहाँ पर नज़र आएगी। फूल मालाओं से जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं। और जितनी भी दूर तक हम देख सकते हैं, पीछे भी आप देखिए तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम लोग लगातार यहाँ पर तिरंगे झंडे आसपास लहरा रहे हैं। और जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा जो यहाँ से अब शुरू हुई है, दूर दूर तक यहाँ पर तस्वीरों में सिर्फ सेना के लोग और जो आम लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। ख़ासतौर पर ये विनती की गई थी कि जो आखिरी पोजीशन है उसमें कोई रुकावट ना आए, इसको देखते हुए लोग रोड्स के एक तरफ रहें। लेकिन ये तमाम आप परिवार की गाड़ियाँ, आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ियाँ, क्योंकि तीनों जो सेनाएं हैं उसके प्रमुख भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये तमाम आप ऑफिसर्स की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं जो यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगी। साफ तौर पर ये बताया गया है कि ब्रिगेडियर और समक्ष रैंक के कुल 12 अधिकारी यानी सेना, नौसेना और वायुसेना राज्य में रखे जाने के दौरान नश्वर अवशेषों पर निरंतर निगरानी भी इस दौरान अंतिम यात्रा के दौरान रख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के समक्ष रैंक के 6 अधिकारी सेना, नौसेना और वायुसेना से 2 प्रत्येक
राष्ट्रीय ध्वज की निगरानी करने के लिए रखा गया है। अब आप आर्मी, नौसेना और वायुसेना के तमाम उन जवानों को इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए देख रहे हैं। कुल मिला के ये बताया भी गया है आर्मी की ओर से कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 99 सभी रैंक के ट्राई सर्विसेज बैंड के 33 सदस्य फ्रंट एस्कॉर्ट में शामिल हुए हैं इस अंतिम यात्रा में, और तीनों सेनाओं के 99 सभी रैंक के रेयर एस्कॉर्ट के रूप में भी इस पूरी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। काफ़ी लंबा काफिला यहाँ पर आर्मी का दिखता हुआ, क्योंकि सीडीएस के सैन्य अंतिम संस्कार में भी बताया गया है कि 800 सेवाकर्मी कुल मिला के यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। सीडीएस के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अब यहाँ से आगे जाते हुए 17 तोपों की सलामी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी जाएगी, और तीनों सेवाओं के बिगलरों द्वारा लास्ट पोस्ट और राउस के पूरे वो पूरी धुन बजाई जाएगी जो अंतिम यात्रा में आगे चलकर होगी। ये परिवार के आप लोग इन तमाम गाड़ियों में देख रहे हैं, जो तमाम इन फैमिली से हैं। जनरल बिपिन रावत के परिवार की के आपने अभी गाड़ी में बैठी हुई दोनों उनकी बेटियों को देखा जो इस काफिले में शामिल हुए हैं, और यहाँ से अब काफिला आगे बढ़ता हुआ राजाजी मार्ग की तरफ पूरा काफिला रवाना हुआ है, और तमाम जो लोग हैं वो उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ऐश्वर्या, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो लगातार गाड़ी के साथ लोग दौड़ रहे हैं, ये आम लोग हैं? बिल्कुल आम लोग हैं, बिल्कुल आम लोग हैं। और जब इन आम लोगों से हमने बात भी करी और हमने जानने की कोशिश करी कि क्या आप जनरल बिपिन रावत से कभी मिले हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना था कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन कितनी बड़ी शख्सियत है कि उनके एक अंतिम दर्शन के लिए वो यहाँ पर आना चाहते हैं, जो देश के लिए उन्होंने काम करके दिखाया है। और जितने बड़े देशभक्त जनरल बिपिन रावत को लगातार माना जा रहा था, उनके लिए साफ तौर पर यहाँ पर आए हैं। आप तमाम अभी भी आर्मी की गाड़ियों को यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप लोग यहाँ पर अंतिम यहाँ पर इनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, तो किस तरीके से जनरल बिपिन रावत को भी आप लोग याद करते हैं। क्योंकि सुबह से हमने देखा कि नेता और अनेक अधिकारी वर्ग के लोग तो यहाँ पर आए ही थे, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी तादाद में जो लोग हैं पोस्टर्स, बैनर्स लेकर भी आए हैं। आप लोग यहाँ पर अंतिम यात्रा में जनरल बिपिन रावत की शामिल होने आए हैं, कभी आप मिले हैं उनसे, किस तरीके से आप लोग याद करते हैं यहाँ पर? नहीं, आज तक हम मिले तो नहीं है, बट उनकी बहादुरी की मिसाल देश का हर एक बच्चा दे सकता है आज की डेट में। और उनका देश से जाना बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए, और बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है हमारे लिए। देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है, ये आम जनता की भावनाएं हैं, और इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर जो अंतिम यात्रा में भी लगातार शामिल होने के लिए आए हैं, और उनको एक देश का बड़ा नुकसान के तौर पर याद करते हैं। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में आप लोग शामिल होने आए हैं यहाँ पर, किस तरीके से आज उनको याद करते हैं? कभी आप मिले हैं या फिर एक देश के सपूत को अंतिम विदाई दे रहे हैं? जी, वो एक बहुत बड़े जनरल के रूप में याद किए जाएंगे, जिन्होंने एक पहले जनरल और सीडीएस, पहले सीडीएस, इस देश के सीडीएस जिन्होंने की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना को एक इंटीग्रेटेड डायरेक्शन दिया है। और आने वाले समय में उनकी इस तरह की जो योजनाएं हैं, आगे उन्होंने एक थिएटर कमांड की योजनाएं बनाई थी, वो आने वाले समय में, जो कि अमेरिका जैसे कंट्री 12 सालों में उस थिएटर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, 3 सालों में उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाई थी, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे हिसाब से मेरा मानना है आने वाले जो भी सीडीएस होंगे वो इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, और हमारी
देश जो देश के लिए क्षति आप मान रहे हैं इसको। साफ तौर पर यहाँ पर आए हुए लोगों की आंखें भी नम नज़र आ रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर इतना बड़ा देश को नुकसान यहाँ पर नुकसान हुआ है जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद। और अभी भी इस वक्त क्योंकि काफिला आगे बढ़ चुका है राजाजी मार्ग से, और यहाँ पर भी जितने भी तमाम लोग आए हैं वो आगे दौड़ रहे हैं। छोटे बच्चे आपको नज़र आएंगे जो इन अंतिम यात्रा में यहाँ पर जनरल बिपिन रावत के शामिल होने आए हैं। व्हील चेयर्स पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग बिपिन रावत के ऑफिशियल आवास पर नज़र आए। तमाम उन नेताओं ने आज अंतिम श्रद्धांजलि दी, और अब से लगभग आधे घंटे या 45 मिनट के बाद दिल्ली कंटोनमेंट के उस इलाके तक पहुंचेंगे बरार स्क्वायर पे, जहां पर अब उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐश्वर्या, प्रोटोकॉल्स की अगर बात करें, आपने कहा कि 17 तोपों की सलामी दी जाएगी, तीनों सेना से अफसर वहां शामिल रहेंगे। आपने एक धुन का जिक्र किया, ये शोक धुन होगी? ऐश्वर्या से जुड़ेंगे, शायद कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। उर्वशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उर्वशी, देश के हीरो को अंतिम क्षण तक छोड़ना नहीं चाहते जो उनके चाहने वाले हैं। काफिला आगे बढ़ रहा है लगातार, लेकिन लगातार लोग भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये देखिए हम वो पूरे, जी बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए ये पूरे विजुअल्स में पूरी तरह से ये बयां करता है कि कितना प्यार है जनरल रावत को लेकर। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश शुक्ला आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कैसे जो सारे सैनिक हैं और सारे अलग अलग स्लोगनियरिंग कर रहे हैं। चाहने वालों की जो भीड़ है वो उनके गन कैरेज के पीछे पीछे जो है दौड़ रही है। कुल मिलाकर 800 जवान मौजूद रहेंगे इस पूरे, ये देखिए लेफ्ट और राइट में जगह जगह पे पोस्टर्स हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। हम फिलहाल जो है कामराज मार्ग से आगे निकल चुके हैं बरार स्क्वायर के तरफ, और देखिए लेफ्ट राइट दोनों जगह पे फूलों से जो है उन्हें अंतिम विदाई की जा रही है। कहीं पे जो है एक लोगों के आंखों में नमी है, वहीं एक फक्र से लोगों का जो है सर भी ऊंचा है, क्योंकि आज ये एक जो हीरो रहे हैं इनको एक रेस्पेक्ट और ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। मैं आपको पूरे अंतिम यात्रा के डिप्लॉयमेंट की अगर बात करूं तो 800 जवान ये पूरे यात्रा में फिलहाल मौजूद हैं। जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। अंतिम संस्कार के वक्त तीनों सेनाओं के बिगुल बजेंगे, सैन्य बैंड शोक गीत गाएगा, जो हमने देखा भी था कि कैसे ये जब कामराज के ऑफिशियल रेसिडेंस से जब इनके गन कैरेज में पार्थिव शरीर निकल रहा था, बाहर गेट से बाहर आ रहा था, तभी हुआ था। देखिए सारे ट्रक्स पर सारे अलग अलग फोर्स के जवान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, इन सब की डिप्लॉयमेंट है। साथ ही में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के 6 अफसर हैं जो तिरंगा लेकर चलेंगे, हमने वो भी देखा। अंतिम दर्शन पर जो स्थल है, यानी कि ये पूरा एक बरार स्क्वायर जो है, वहाँ पे 12 ब्रिगेडियर स्तर के अफसर जो है तैनात होंगे। और आप ये झलक देखिए, ये किस प्रकार का हम एकदम ऐसा अद्भुत प्यार है लोगों का जनरल रावत के लिए। जनरल रावत, मैं जब लोगों से बात कर रही थी, यही आम जनता थी रचना लेफ्ट और राइट में जो अब आपको दिखाई दे रही है। कहीं पे जो सारे ऑफिसर्स हैं वो सैल्यूट कर रहे हैं, वहीं पे जो है हाथ जोड़कर लोग जो है अंतिम विदाई कर रहे हैं। जब मैं इन लोगों से बात कर रही थी, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इनका सिर्फ काम देखा है और काम से ही इतने प्रेरित और कनेक्टेड रहे हैं, इतना प्यार उनमें रहा है इसी काम को लेकर कि उन्हें आज जब ये दुख भरी घटना के बारे में जब उन्होंने सुना तो उनके आंखों में जो है आंसू आ गए। ये पूरा नज़ारा आपको अभी फ़िलहाल का दिखा रहा है। पूरा का पूरा ये जो मार्ग है, यानी कि कामराज मार्ग से होकर बरार स्क्वायर की तरफ जो हम हेड हो रहे हैं गाड़ी से,
पार्थिव शरीर के पीछे ही हैं हम, और जो हम इस तरह ये हेड हो रहे हैं हम उसी में देख रहे हैं। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये पार्थिव शरीर है। अविनाश शुक्ला आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी वर्चुअली और ये टीवी के माध्यम से हमारे माध्यम से कनेक्टेड रहें इस पूरे अंतिम यात्रा को लेकर। देखिए कैसे ये सारे नौजवान हैं जिनके इंस्पिरेशन जो है ये जनरल रावत है, उनके कामकाज को लेकर ये इंस्पिरेशन रहे हैं, और उसी तरह से ये यात्रा में हम भी आज जो है शामिल हैं। एक ग्रैंड सैल्यूट और एक ऐसा ग्रैंड सलाम जनरल रावत को उनके सारे कामों को लेकर ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। और देखिए किस तरह से अलग अलग फोर्सेस के ये जवान हैं, एक का प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल के साथ जो है हम देख रहे हैं। ये देखिए लेफ्ट में फिर से हर ये पूरे मार्ग पर आपको ये जब पूरी यात्रा जारी है तो मार्ग पर आपको गुलाब के पत्ते दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करते हैं कि ये प्यार है जनरल रावत के लिए। और ये पूरा का पूरा अंतिम यात्रा आप इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं, और लोगों का प्यार जो उमड़ कर आ रहा है। इंडिया न्यूज़ में लगातार देश के जाबाज को सलाम करते हुए, उस जज्बे को सलाम करते हुए। उर्वशी आपके पास लौटूंगी मैं, आप रहिएगा साथ में, चूँकि आप अंतिम यात्रा के साथ साथ में चल रही हैं और एक एक तस्वीर डिफाइन करके बता रही हैं। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है हम दोनों तरफ देख रहे हैं, लोगों का जमावड़ा है। इन लोगों में पुलिस विभाग के लोग हैं, फौज के लोग दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही ख़ास बात ये कि इसमें आपको आम लोग भी नज़र आएंगे। वो आम लोग जो काम के ज़रिए जनरल रावत को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके काम को सराहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इसी जज्बे, इसी डेडिकेशन को देखते हुए देश के आम लोग भी इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं रास्ते में, और जनरल रावत अमर रहे के नारे लगातार गूंज रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे सर जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड कर्नल देवानंद सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल ही रही हैं, लेकिन देवानंद सर, ये तस्वीरें हिंदुस्तान की खूबसूरती को भी तो बयां करती हैं ना, जहां पुलिस विभाग या फिर फौज से जुड़े हुए अफसर हों या जवान हों, वो तो फूल बरसा ही रहे हैं, वो तो रास्ते भर में खड़े ही हैं, लेकिन आम लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर हैं जनरल रावत के काम से, उनके डेडिकेशन से, कि गाड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं और सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देश के नागरिकों का जो प्रेम है जनरल रावत साहब के लिए, वो एक बहुत उच्च स्तर का प्रेम रहा। जैसा हम हमारी चर्चाओं के दौरान बता रहे थे कि जनरल रावत साहब एक वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने ऐसा नागरिक नहीं मानते, सैनिक और हम लोगों का मानना तो अलग है। देखिए, पर जब सामान्य जनमानस तक वो पहुंच पाए, और ये जो पिक्चर और जिस तरीके से ट्वीट और जिस तरीके से इवन कश्मीर से उनके समर्थन में वीडियोस आ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि जैसा मैं उनको जानता था या जो सैनिक हम लोग साथ काम किया है जीवन काल में, तो उनकी ये व्यक्तित्व की बहुत एक अच्छी छवि थी कि जहाँ तक वाइल ही वॉज ऑन ड्यूटी, लाइक वाइल हम अपने काम से डील करते हैं, लाइक इंसर्जेंसी में है, एंटी टेररिस्ट रोल है, सेना के ऊपर है, या चीन को जवाब देना है, या दैट टाइम वो बिल्कुल ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते थे, लाइक चाइना इज एनिमी नंबर 1, और पाकिस्तान को कहते थे तुम एक टेररिस्ट भेजो, जितने भेजोगे हम वी आर रेडी टू वेलकम, और 4 फीट नीचे जमीन में गाड़ देंगे। तो वो एक उनका अलग चेहरा था, सर्जिकल स्ट्राइक अलग चेहरा था, इंटीग्रेशन और थिएटर कमांड्स अलग चेहरा था। बट जो आप अभी दिखा रही हैं, वो एक चेहरा उनका ऐसा चेहरा था जिसके अंदर वो कश्मीर में भी लोगों से मानवता की बहुत एक अच्छा उनका कनेक्ट था। यूनिट कहो, सेना कहो, हम जो सब लोग मिलते थे, चर्चाएं होती थी, और वो ही वॉज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल मैन। और उनका जो कनेक्ट युवाओं से था पिछले 2 वर्षों में, जब से वो सीडीएस बने थे, तो उस दौर में मैं सरकार की ये जो एक फैसला किया था सीडीएस का,
तो बहुत ही चर्चा में रही सीडीएस अपॉइंटमेंट और पहले सीडीएस किसको चूज करना चाहिए। तो ये हम लोग सब मान सकते हैं कि ये जो चूज करने वाली जो चीज़ है वो इतनी इम्पोर्टेंट थी और पब्लिक में जब इनकी बातें आई तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनको लगने लगा कि ये हमारे बहुत एक काबिल अधिकारी हैं, वो पब्लिक तक पहुंच पाए। युवाओं को भी वो संदेश देते रहते थे कि देखिए सेना में आप आना चाहते हैं, लाखों की रैलीज होती थी, तो ये लोग युवाओं से बहुत बेहतरीन कनेक्ट है। और रही बात देखिए जो उन्होंने बदलाव लाए देश की एक सेना के अधिकारी और सेना के सेनापति और नागरिकों के बीच में कनेक्ट जो पहले आमतौर पर राजनेता और पब्लिक के बीच में देखने को मिलता था, बहुत बड़े बदलाव की बात है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि जो जिस प्रकार से आज हर नेता पॉलिटिकल कोई भी पार्टी हो, कोई भी स्टेट का हो, उनका जाकर के सम्मान करना, उनके कार्यकाल के दौरान में हम कई बार सुनने को मिलते थे उनके फैसलों पर, वो एक अच्छी डेमोक्रेसी का निशान था। पर आज जिस प्रकार विपक्ष, सरकार और स्टेट लेवल एवरीवन इज कमिंग, और ये बहुत अच्छा संकेत है देश के लिए। और मैं मानता हूँ आने वाले सीडीएस जिनको भी सरकार नियुक्त करेगी उनको इन चीज़ों से जो उन्होंने स्टैंडर्ड और बेंचमार्क सेट किए हैं, इनसे आगे बढ़ाने में सीख लेनी चाहिए कि देश जिस तरह सम्मान करता है और एक सीडीएस को जिस नजरिए से देख रहा है, एक ही शुभ संकेत है। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा नागरिकों को कि देखिए पॉलिसीज तो बनाने वाले सरकार होती है, और सरकार को जब सीडीएस बने तो रावत साहब एक ऐसा व्यक्तित्व मोदी जी को मिला जिसके अंदर उनकी जो पॉलिसी थी देश की वो एग्जीक्यूट करने का मौका मिला। और पिछले 2-3 साल जैसे अभी कोई बता रहा था कि भाई सीडीएस का जो काम होता है, थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विसेज, साइबर वॉरफेयर, साइबर कमांड और अपनी स्पेस कमांड, स्पेशल फोर्सेस का जो ग्रुपिंग, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए बाकी दुनिया की सेनाओं में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूके पहला देश था जिसने 1800 सदी के अंदर 1883 में शायद अपना यूनिफाइड ये सीडीएस का पद बनाया था। और अमेरिका, रशिया और चाइना ने 2015 में बनाया, बहुत लेट है। और भारत का आते आते 2020 हुआ है, पर सबने बहुत लंबा समय लिया इसको क्रियान्वित करने ने। पर रावत साहब ने तो 3 साल का इसमें किया था, टाइम शेड्यूल बनाया था। और मैं मानता हूँ बहुत आगे तक हम सफलतापूर्वक जिस प्रकार उन्होंने तीनों सेनाओं को एक साथ एक बोर्ड पे लेकर के, बिकॉज इस लेवल पे काम करना आसान नहीं होता है। लीडरशिप का एक करिश्मा है कि उन्होंने तीनों को जोड़ पाए, राजनेताओं को जोड़ पाए, पब्लिक को जोड़ पाए। सीडीएस इज नॉट ओनली मिलिट्री मैन, वो एक देश का चेहरा है। वो विश्वास जता पाए कि सीडीएस आपने नियुक्त किया है तो आप सेनाओं की चिंता ना करें, देश सुरक्षित है। अब जिन लोगों के मन में शंकाएं थी उन तक भी वो पहुंचे और पहुंच करके ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसका मुझे गर्व है एक सैनिक होने के नाते, जो उनके साथ कई बार मुझे मिलने का मौका मिला। साथ हम कश्मीर के दौर में हमने काम भी किया है। तो मैं मानता हूँ एक उनका व्यक्तित्व शायद हर व्यक्ति को सौभाग्य नहीं मिलता है, और सरकार और हम सब लोग सौभाग्यशाली रहे कि उन्होंने वो हमारी नींद डाल दी सीडीएस के कार्य की, उस दफ्तर की, उस कैरेक्टर की। क्योंकि जहाँ एयरफोर्स, नेवी 3 अलग अलग पैमानों को आज एक मान के चलते हैं। और आप देखिए जिस प्रकार तीनों सेनाएं इनका दुख मना रही है, पूरा देश मना रहा है, विदेशों से उनके लिए मैसेज आ रहे हैं। और विदेश से ज्यादा बात मैं कहूंगा कि जहां हमारी कर्म भूमि सैनिकों की जो 80 से लेकर के 2010 तक सेना में थे अधिकारी पद पे, हमारी कर्म भूमि ज्यादातर की श्रीलंका और कश्मीर रही है। और ये भी टेररिज्म के अंदर इन्होंने बहुत एज ए सीओ रहे, एज ए कमांडर रहे, और मैं मानता हूँ एज ए कोर कमांडर इन्होंने बर्मा के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, एज ए चीफ बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को लीडरशिप दी इन्होंने। और बहुत इनके जो कार्य थे बड़े सराहनीय। पूरी और पाकिस्तान और चाइना तो इनके नाम से थर थर कांपता था साहब। बिल्कुल।
और मैं आज ऐसे तुल्य जो देश के अंदर अब जिस तरह सम्मान मिल रहा है, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि देखिए चीन के विरुद्ध तो इनका ऐसा एक इनका इतिहास है। 78 में कमीशन होते हैं, 87 में इनको मौका मिलता है उधर जाने का। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि चीन के लिए जो पॉलिसी जो भारत सरकार ने थोड़े वर्ष पहले बताया कि हम लेंगे एक्साइजन, तो ये सीडीएस ने जो स्टेटमेंट दिए कि देखिए फैसला करेगी सरकार और भारतीय सेना तैयार है, कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है। उसके कॉन्ट्रास्ट में जब चीन ने पिछली साल गलवान में दुस्साहस किया, तो आप देखिए जब ये सीडीएस थे और जिस प्रकार से एयरफोर्स लेवल जो नीचे अपना डिप्लॉयमेंट और आर्मी ने जो हमारे कर्नल बाबू साहब जो 16 बिहार के सीओ थे, जिस प्रकार से गलवान में हमने हमारे सैनिकों ने, आप देखिए क्या जवाब दिया चीन को। चीन अभी कांप रहा था उनके नाम से। और मैं कल न्यूज़पेपर थोड़ा अपडेट ले रहा था, तो चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ने बड़ा एक मजाक के तौर में, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि उनकी आत्मा को तो इतना वो मिला होगा कि अब रावत साहब नहीं रहे तो उनकी तो मतलब वो जिस तरह कांपते थे, मैं बता सकता हूँ कि चीन ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे जाहिर है कि रावत साहब का व्यक्तित्व कितना बड़ा था। और व्यक्तित्व के अलावा जो उन्होंने देश को जोड़ने में, सेनाओं को जोड़ने में प्रभावशाली व्यक्तित्व था। और वही एक बहुत बड़ी वजह है जो तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं। एक तरफ से ये अंतिम यात्रा का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरी साइड है जहां ट्रैफिक रोका नहीं गया है, चल रहा है, वो ट्रैफिक रुक गया है। जहां तहां जो गाड़ियां हैं वो रुक गई हैं और रुककर देश के जाबाज हीरो को आखिरी विदाई दे रहे हैं, आखिरी सल्यूट एक तरीके से दे रहे हैं। पांडे सर, 42 से 43 साल कम नहीं होते, आधे से ज़्यादा जीवन अपना सिर्फ सेना के नाम कर दिया, सेना के लिए जो डेडिकेशन दिखाया उसी का नतीजा तो है। कितना प्यार लोगों का उमड़ पड़ा है आज अंतिम सफर में। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं 2 उदाहरण और देना चाहूँगा, बहुत एग्जाम्पल भी हो चुके हैं कि किस प्रकार से जनता को अपना प्रेम दिखा रही है। नीलगिरी जिले में नागरिकों ने, देखिए तमिलनाडु ने कोई राजकीय शोक की घोषणा नहीं की है, लेकिन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकल पब्लिक ने खुद अपने हिसाब से निर्णय लेके वहाँ पर आज राजकीय शोक रखा है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से उनका जो व्यक्तित्व था लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। भारत में नहीं, भारत के बाहर से पाकिस्तान, जिसके खिलाफ अपनी सेना हम तैयार कर रहे हैं, वहाँ से भी उनके लिए श्रद्धांजलि संदेश आए थे। इजराइल, रशिया, अमेरिका और जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल नदीम रजा पाकिस्तान में, आर्मी चीफ उनके जनरल बाजवा और पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल ज़ाहिर अहमद, इन लोगों ने भी शोक संदेश भेजे हैं विपिन रावत साहब के लिए। तो ये इस बात का द्योतक है। और इसके पहले बता दूं कि पहले दिन ही श्रीलंका, नेपाल से हमारे पास जो संदेश आ गए थे उनके वहाँ के प्रतिनिधियों के, किस प्रकार से उन्होंने अपना शोक संदेश भेजे थे। तो ये बताता है कि वो देश में नहीं, पूरे इस रीजन में, एशियन सब कॉन्टिनेंट में और साथ में पूरे विश्व में एक बहुत ही चिरपरिचित व्यक्तित्व थे। और उनकी जो कमियां होंगी, जो कमी आएगी सिस्टम में, उसको भर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब हमें देखना होगा कि उनके जाने के बाद हम कैसे उनके जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलकर उन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं जिसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए। और उन नौजवानों के लिए सर क्या मैसेज, पांडे सर, जो नौजवान या तो सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं या तैयारियां कर रहे होते हैं या नए नए भर्ती होते हैं, एक एग्जाम्पल सेट किया है जनरल रावत ने। बिल्कुल देखिए उनके अगर टेन्योर्स देखे जाएं, उन्होंने बहुत ही कठिन 4 दशक का समय बहुत लंबा होता है। 43 ईयर्स मतलब एक 43 साल, एक आधी से ज़्यादा ज़िंदगी लोगों की जो है वो, अगर औसत एज जो है हमारे आंकड़े बताते हैं कि 72 साल 74 साल है और उसमें 43 साल निकाले तो आधे से अधिक की ज़िंदगी जो है उन्होंने केवल देश के सेवा में लगाई। ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने किया, वो एक अपने पिता के पद चिन्हों पर चले,
पिता जो थे उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल थे और चाइनीज PLA के साथ जो 1986 में एक फेस ऑफ हुआ था सुंदरम चू वैली में अरुणाचल प्रदेश में, उसका भी नेतृत्व रावत साहब ने किया था। तो एक परिवार, ऐसे सेना के परिवार से आने वाले बिपिन रावत साहब, और ये बताता है कि किस प्रकार से चुनौतियों का सामना किया। वो NDA में गए, वो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में यूनाइटेड नेशन फोर्स के लिए काम किया और वहाँ उनके जो उन्होंने कदम लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, उसकी विभिन्न प्रशंसा हुई। तो ये बताता है कि हमारे पास अगर हम चाहें, इच्छा शक्ति हो, तो हम कुछ भी हासिल करते हैं। आज के युवा के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, हाँ। एक उच्च कोटि का आप अपना व्यक्तित्व बनाइए, अपने एक लक्ष्य चुनिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाइए। जैसा कि बिपिन रावत साहब ने कहा, और पूरा जो भी उन्होंने तय किया उसको हासिल किया। और वो फेमस थे अनपॉपुलर डिसीजन मेकिंग के लिए, जो आम आदमी निर्णय नहीं ले पाता था, उन निर्णय को भी लेने में उन्होंने लेकर सबको बताया कि किस प्रकार से ये निर्णय लिया जाता है और कैसे चुनौतियों का सामना किया जाता है। हाँ। JNK में जो जनरल रावत के संबोधन के कई ऐसे हिस्से हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, और उन हिस्सों के साथ ही जनरल रावत को अंतिम विदाई लोग दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नौकरी, सेना में नौकरी मतलब नौकरी नहीं होता, उसे जिया जाता है और उसमें जी जान लगानी पड़ती है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा फिजिकली, मेंटली मजबूत रहना पड़ता है। और एक फौजी जब देश की सीमा पर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, कर्नल देवानंद, आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे, जब एक फौजी ड्यूटी कर रहा होता है, अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा रहा होता है, तो एक जिम्मेदारी फौजी का परिवार उसके पीछे निभा रहा होता है और अपने आप को मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर कर रहा होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज सुबह जो तस्वीरें हमने देखी, ब्रिगेडियर LS लिड्डर को जब मुखाग्नि दी गई, उनकी 12th में पढ़ने वाली बच्ची ने उन्हें मुखाग्नि दी। अब कुछ इसी तरह की तस्वीरें अब सामने आएंगी जब जनरल रावत को मुखाग्नि दी जाएगी। जी देखिए, जो ये आपने बताया, हम आर्मी और मैं कहता हूँ सैनिकों के जीवन में एक चीज तो हमें बतानी पड़ेगी देशवासियों को। देखिए कि जब परिवार होता है, वो जब हम ऑपरेशनल एरियाज में होते हैं, तो ये तो तय है कि उनको चिंता तो 1% रहती है कि भाई वेदर ही कम बैक अगेन, घर वापस आएंगे कि नहीं। छुट्टी से जाते हैं तो आंखों में आंसू होते हैं। और एटलीस्ट हम लोग जो टेररिज्म और ये बॉर्डर एरिया, मतलब ऑल सोल्जर्स का यही हाल रहता है। आज आपने सही बताया, सुबह देखा कि लीडर साहब की बेटी, लीडर साहब मेरे सबऑर्डिनेट रहे थे नेशनल डिफेंस एकेडमी में और मैं उनका सीनियर ऑफिसर रहता था। तो उस समय ये न्यूली वेडेड थे और मिसेस लीडर को आप देख रहे थे जिस प्रकार से वो कह रही थी कि भाई नियति को यही मंजूर है, सैक्रिफाइस। और मुझे गर्व तो है, पर अब जीवन अकेले निकालना पड़ेगा। ये एक सच्चाई है, गर्व होता है, पर जैसे बेटी की आंखों में आंसू थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं अपने चैनल पे देख रहा था यहाँ बैठे बैठे, तो मेरी आंखें भी नम हो गई उस बच्ची को देख करके, क्योंकि जब हम साथ थे तो ये बच्ची उनकी पैदा नहीं हुई थी। वो बात 2000 की है, वो 17 साल की है। तो ये जो परिवार का जो रिश्ता होता है, मैं आपको एक मेरा किस्सा बताना चाहूंगा कि किस तरह सैनिक जब ऐसी परिस्थिति में होता है। मैं श्रीलंका का आपको बताना चाहूंगा। मैं श्रीलंका में जब हम लोग गए थे, तो वहां उस दौर में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे और ना ही कोई मोबाइल का प्रचलन न था। तो अब घर पे, अब दूसरे देश में आप चले जाओ, 6 महीने कोई बात करने का साधन नहीं। और लेटर्स भी हमारे मिलिट्री उस दौर में जब आते थे तो वो करीब 10-15 दिन लग जाया करते थे। और वहां पर सबसे बड़ी स्थिति ये होती थी परिवार की, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ। मैं पहले परिवार की बताऊंगा, बाद में हमारी जो लोग ऑपरेशन पे होते हैं जी। तो इनको क्या होता है, जब कैजुअलिटीज होती है साहब, ये तो तय है कि हम ऑपरेशन में जाएंगे तो कोई हमारे साथी कोई तो छूटेगा पीछे। तो हमको पर परिवार के लोगों को थोड़ा टेंशन रहता है। पर मैं मानता हूँ सर पे गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं कि जीवन तो सबका जाना है, बट देश के काम आना। मैं मानता हूँ जब भी मैं 6 महीने बाद छुट्टी से जब लौटे, तो मैं, हमारी बच्चे छोटे थे 1-1.5 साल के, तो वाइफ ने कभी मुझे कमजोर नहीं किया हमें। वो कहती थी कोई बात नहीं, चिंता रहती है, बट यार हमें गर्व है कि यू आर ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और मैं मेरी बात बताऊं, एक दिन ऑपरेशन में हम घिर गए थे साहब, श्रीलंका की बात है। 4 राजपूत हमारे साथ ही, मैं 9 बिहार रेजिमेंट का हूँ, 7 सिखलाई जो प्रेजेंट हमारे चीफ ऑफ स्टाफ है आर्मी के, वो हमारी हमारी तीनों यूनिटें साथ थी। तो जब हम घिर गए, तो मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, परिवार और देश के बीच में जब फैसला करना पड़ता है, तो
मैं हमारी टोली पूरी घिर चुकी थी, बहुत कठिन परिस्थिति थी और करीब 10-12 फीट की दूरी पे हमारे एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा था श्रीलंका में। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, मुझे 1 सेकंड मुझे शायद मेरे वाइफ का मुझे ख्याल आया था कि चलिए देखेंगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट फिर मुझे जरूरत वो लगी कि हमें फिर ख्याल ही नहीं आया, हमें ये आया कि किस तरह दुश्मन को निस्ताबूद करना है और हमारे साथियों को एक साथ कर करके हमने बचाना है और किस तरह हमारा मिशन पूरा करना। देखिए, जब सैनिक ऐसा सोचता है अगले दिन हम विजयी, कहने का मतलब ये डर तो रहता है ऐसा। और जो बच्चों के अब जब परिवार के वो सदस्य चले जाते हैं तो जो परिवार के अंदर उसकी भरपाई मैं नहीं मानता कोई दूसरा व्यक्ति ले सकता है, पर जो सम्मान और जो प्यार देश देता है उसके सहारे हम लोग कभी ये महसूस नहीं करते अकेले पड़ गए। अब गीतिका जी लीडर साहब की वाइफ, मैं जानता हूँ हमारे जैसे हजारों जो मित्र हैं उनके सदैव साथ रहेंगे, पर वो यस कमी रहती है। पर मैं सैनिक होने के नाते कह सकता हूँ, मैं तो ये गर्व मानता हूँ, मुझे ये ऑलवेज रहता है कि मैं वर्दी के अंदर देश के काम क्यों नहीं आ पाया। प्रयास तो पूरे जीवन हमने 35 साल हमने भी उसी जगह बिताए थे, पर हमको सौभाग्य नहीं मिला। देखिए, और ये रण जिसको कहते हैं कि रण बाकुरों की तमन्ना तो यही रहती है साहब कि कभी हमें